Of course, as the Chief Justice of India himself said, there's horse trading that is taking place. This is quite a historic verdict in many ways. I think it's a very important verdict in the judicial history of India. The first time the court has intervened in an election process which had been concluded and held that there was a serious irregularity in the election process conducted by the presiding officer, who had himself defaced the votes and derailed the elections, and the marks that he had put on those ballot papers became the reason for invalidation of those votes. The court has now given a verdict that those 8 votes which were declared as invalid are actually valid votes, and by counting them along with the 12 votes which were polled earlier, he gets 20 votes, and the petitioner has been declared elected as the mayor of Chandigarh Municipal Corporation. There has been no precedent like this, sir, ever in recent times. Do you ever recall any such incident that has ever happened before? Because I can't see when an electoral process is done. Today, the Supreme Court has unilaterally taken that role under the Constitution to go ahead and declare the mayor, so your petitioner as the candidate. I think the electoral process was hijacked by the misconduct of the mayor, and the Supreme Court has taken a very valid cognizance of the same, and they have held that the entire edifice of democracy is based upon free and fair elections, and in the manner that it is found that they have not conducted themselves fairly is a reason enough to order the election of the mayor in the verdict by the court. Some strong words by the Chief Justice of India to Anil Masih, and now issued show cause notice. You all are pushing for action against him. How do you respond to that? Yes, Mr. Masih was in fact warned yesterday in the court proceedings that whatever he says can be used against him in case it is found to be false. In spite of that, he made a statement that he has put mark on 8 ballot papers because they were defaced. And the court has found today by examining the ballot papers itself that there was no defacement of the ballot papers, and therefore it is only his marks which were the ground of invalidation. They have directed proceedings under 340 of the IPC to be taken against him for making a false statement in court, as also for derailing the election process, and he's been issued notice for contempt. So this will be done by the Supreme Court registry or by the Yes, Punjab the Registrar General of the Supreme Court has been directed to proceed in the matter. So, Thank you. What action will be taken against him? When you say show cause, what are the possible actions that will be taken? Well, there are punishments in the Contempt of Courts Act for making these kind of actions very, very culpable, and I'm sure the court will proceed in accordance with law. Thank you. किस तरह देखते हैं पूरे फैसले को? बहुत एक ऐतिहासिक दिन है आज, जब एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, जो इनकी साजिशों के साथ इन्होंने सब तरह की धक्काशाही के साथ यहाँ पिछले दिनों में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे उनको इन्होंने जीत के रूप में हासिल कर दिया। इनको 30 तारीख को जो हुए थे इलेक्शन जनवरी को, उनको आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। इनकी जो दलीलें थी, जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे कि उसने 8 नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे, और कहना इनका ये था कि जी वो एक्चुअली वाजिब गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने, इनको अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट कानून को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास सब अधिकार हैं। उन्होंने वो वीडियोग्राफी मंगवाई, उन्होंने बैलेट पेपर मंगवाए। बैलेट पेपर देखने के बाद उन्होंने कहा ये तो 8 के 8 बैलेट पेपर बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कहाँ डिफेसमेंट हुआ, कहाँ ये खराब हुए हैं, कहाँ नहीं पता लगता किसने वोट किसको डाली है, तो उसको आपने रिजेक्ट किस कारण किया। स्पष्ट तौर से ये पता है, ये इंडिया अलायंस का जो ग्रुप था उनके कैंडिडेट को वोटें गई थी, और उनको उन्होंने आज गिन के 8 और 12 जो इन्होंने डिक्लेयर की थी, 8 12 के साथ ही 8 लगा के 20 वोटें करके वो हमारे कैंडिडेट को इन्होंने जेतू करार कर दिया है। इंडिया अलायंस के तौर पे भी देखेंगे इसको लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, ये विजय अपनी जगह एक अहम विजय है, लेकिन वो फैसले हाई कमांड के होते हैं, जो हमारे लोकल लेवल पे फैसले नहीं होते। हाई कमांड ने, हमारे कांग्रेस ने एक 5 मेंबरी सदस्यीय कमेटी बनाई हुई है, उसमें श्री मुकुल वासनिक जी उसके अध्यक्ष हैं, उसमें बघेल जी हैं, हमारे गहलोत जी हैं, दोनों ये मुख्यमंत्री हैं पुराने, सलमान खुर्शीद जी हैं, आप सभी उनका नाम जानते हैं, और उसमें मोहन प्रकाश जी हैं, हमारे सीनियर लीडर। वहाँ ये 5 की कमेटी है, वो सभी पार्टी से चर्चा करके फैसले अल्टीमेटली जो होंगे वो फैसला हम सभी के पास होगा, वो सभी हमें उसको मानने होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसको किस तरह से देखते हैं? आज मैं बड़े अरसों बाद बहुत खुश हूं कि कहीं ना कहीं हमें उम्मीदें खत्म हो गई थी। बहुत बार न्यायपालिका के ऊपर भी
क्वेश्चन मार्क लगते रहे और दबी आवाज में देश के लोग ये महसूस करते थे कि इंसाफ कहां मिलेगा। लेकिन आज बड़े अरसों बाद और 2-4 दिन पहले एक और वर्डिक्ट आया था, जिस प्रकार से वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आज का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की जीत हुई है। राजनीतिक लोग, सत्ता सरकारें अपने आप को खुदा और भगवान समझती हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनको लगता है कि हमारे फैसलों को कौन चुनौती देगा, और बड़े अरसों से किसी ने चुनौती दी भी नहीं। छोटे कोर्ट्स में इधर उधर, मैंने आपको कहा, बड़े अरसों बाद इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2 निर्णय बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं आस जागी है कि अभी इस देश को प्यार करने वाले लोग और इस लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग और संविधान में विश्वास करने वाले लोग अभी इस देश में है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का मैं नाम लेके, आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी का और तमाम उनके साथियों का और सुप्रीम कोर्ट का मैं उनके सामने सर झुकाता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आज उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। और ये उन लोगों के लिए संदेश है जो ऐसा काम करवाते हैं, और ये तमाचा है सरकार के मुंह पर, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। आज पूरे देश के अंदर लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। आज क्या हुआ, कल उन्होंने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया। उनको लगा कि मेयर के पद से इस्तीफा देंगे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट चुनाव के लिए कहेगा, और 3 लोगों को लालच दिया, क्या दिया, अपनी तरफ ले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुरानी जो वोटिंग है उसी के आधार पर ही ये निर्णय होगा। और मेरे को नहीं पता कि प्रिजाइडिंग अफसर वाला क्या हुआ है न, कड़ा नहीं, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ताकि जो कोई भी व्यक्ति सरकार के दबाव में इस प्रकार का निर्णय कभी ना करे। देखो, 24 के इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़े नहीं पड़े, लेकिन आज कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के देश में मैं कहने से ये नहीं रुकूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता था हमें इंसाफ कहां मिलेगा, हमें पूछेगा कौन। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद, इसकी नींव रखी गई है। इलेक्शन में इसका क्या असर होता है, नहीं होता है, देश के लोग धीरे धीरे समझेंगे इस देश के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उम्मीद है कि लोग वापस मुड़ेंगे और दोबारा फिर से ये देश में कायदे कानून का एक सरकारें आएंगी और राज स्थापित होगा। देखो, इंडिया गठबंधन की जीत समझ लो, इसको लोकतंत्र की जीत समझ लो, इसको आम जन जन की जीत समझो, आज देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत समझ लो। लेकिन आज खुशी का माहौल है, आज जश्न है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल नहीं सकता और चीफ जस्टिस को, नहीं तो दिल कर रहा है कि आज उनको लड्डू खिलाकर और उनको प्रणाम कर उनका धन्यवाद करें कि अभी इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश का झंडे को झुकने नहीं देंगे। सर, और सवाल है, कल जा रहे हैं किसान जथेबंदी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो 21 तारीख उनकी थी, तो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस कहावत को आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सार्थक किया है। 30 जनवरी को सबने देखा किस तरीके से न्याय प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से हमारी वैलिड वोट्स के ऊपर कट मार के उनको
इनवैलिड करार दिया गया। और ये सब कुछ होने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा तो कोर्ट ने पहले दिन से इस पे अपना रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया था कि उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहना कि हम इस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। और उसके चलते चलते आज कोर्ट के अंदर वो सारी वोट्स मंगाई गई, एक एक पर्ची को देखा गया और उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को दोषी करार दिया गया। उन 8 वोटों को वैलिड माना गया जो आम आदमी पार्टी के हक में पड़ी थी और आम आदमी पार्टी का कुलदीप कुमार जी जो मेयर प्रत्याशी थे, आज मेयर उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐलान दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार करते हैं और जो इस मुश्किल दौर के अंदर, इस अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को नजर आई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं न कहीं 3 बादशाह बीजेपी में शामिल हो गए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही सूझवान तरीके से दिया गया फैसला है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी स्टेट्स के एक्स सीएम्स, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स को किस तरीके एजेंसीज भेज के, डरा के, धमका के हर तरीके से भाजपा में शामिल कराया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस चीज के लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने री इलेक्शन ना करवाकर और उसकी जो कमियां थी उनको दूर करके और उसी इलेक्शन को वैलिड माना है। जिस तरीके से वहां पर ऑन कैमरा ये हुआ है, ये इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो हम फिर से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने जुडिशरी के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर सबका विश्वास बहाल रखा है। थैंक यू।